Good morning. Good morning. Are you ready for Christmas season? Yes. Huh? Wow. So do one thing. Welcome back. Huh? Sam and Shweta, right? Welcome back from Calcutta. Wow. Shall we do one thing? We heard some amazing things this morning. आज सुबह हमने कुछ अद्भुत चीजें सुनी हैं I could very well close the service right at this moment. और बहुत आसानी से मैं इस सभा के अंदर इसका अंत कर सकता हूँ And in a way, I was very tempted to do it. और एक तरीके से मुझे बहुत ये इच्छा हो रही थी But I feel a little incomplete without preaching. और मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रचार किए बिना भी मैं अधूरा हूँ Being pastor is a little risky. और एक पास्टर होने के नाते एक बहुत बड़ा खतरा है And my wife tells me, you always tend to preach. Okay, thank you for not asking. Okay, do one thing. Talk to maybe people within few feet of yours and share something which you heard this morning. आप अपने पड़ोसी या किसी के पास चल के बता सकते हैं वो चीजें जो आपने सुनी Okay, so I'm giving you a minute while I prepare. मैं समय दे रहा हूँ आपको तब तक मैं तैयारी करता हूँ Okay, those who are done, they can rise up in their places with Luke chapter 1 open in their Bible. और यदि आपका हो चुका है तो फिर आप अपने स्थान पे खड़े होकर लूका एक खोल सकते हैं I feel like singing after you have sung that song. I'm self-conscious for that right now. And that was a great song. मैं अद्भुत गाना था Right? Amazing. I'm still singing that in my heart. और अभी भी मैं अपने मन में गीत को गा रहा How था does it go? ये मेरा जीवन बदल गया है यीशु तेरे आने से. Right? And what else? आया है उजाला मेरे मन में मेरे मन के अंधियारे अंधियारे. Yes, yes. मेरे मन के अंधियारे. Wow. I would have done better job singing. Okay, Luke chapter 1, लूका 1 verse 46. वचन 46 And Mary said, तब मरियम ने कहा my soul does magnify the Lord, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है and my spirit has rejoiced in God my Savior. और मेरी आत्मा ने मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है In my Bible, the title of this portion of scripture is given as Mary's Song of Praise. और मेरे बाइबल में इस तरह से लिखा है कि ये जो स्तुति की है मरियम ने परमेश्वर की This is
This is the Mary, the mother of Jesus. ये मरियम जो यीशु मसीह की माँ थी। We'll talk about this incident a little bit in this message. हम उस हादसे को थोड़ा सा इस संदेश में बताएंगे। She has Jesus in his womb, उसके गर्भ में यीशु मसीह है and she's singing a song to him. और वह उसको ही ये गीत गा के बता रही है My soul does magnify the Lord, कि मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले की में आनंदित होता है, and my spirit has rejoiced in God my Savior. और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता में आनंदित हुई, For he has regarded the low state of his handmaiden. क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। For behold, from henceforth all generations shall call me blessed. इसीलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। For he that is mighty has done to me great things, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, and holy is his name. और उसका नाम पवित्र है, And his mercy is on them that fear him from generation to generation. और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। He has showed strength with his arm. उसने अपना भुजबल दिखाया, He has scattered the proud in the imagination of their hearts. और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया, He has put down the mighty from their seats और उसने बलवानों को उनके सिंहासन से गिरा दिया, and exalted them of low degree. और दीनों को उसने ऊंचा किया, He has filled the hungry with good things, और उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया, and the rich he has sent empty away. और धनवानों को तुच्छ छूछे हाथ निकाल दिया। He has helped his servant Israel और उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाला in remembrance of his mercy, अपनी दया के स्मरण में, as he spoke to our fathers, to Abraham, to his seed forever. और जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी। And Mary abode with her about 3 months and returned to her own house. और मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। Father, this morning we worship you और पिता, आज की सुबह हम आपकी आराधना करते हैं and we open our hearts to you. और अपने हृदय को आपके लिए खोलते हैं। And we know sometimes you say hard things, और हमें पता है परमेश्वर आप बहुत बार कठिन बातें कहते हैं, and sometimes we are scared to open our full heart. और कभी-कभी परमेश्वर हम अपने पूरे हृदय को खोलने के लिए भी डरते हैं, Sometimes we want to be selective, और कभी-कभी हम सिर्फ चुनी हुई चीजें करना चाहते हैं। but Lord, by faith we come to you. लेकिन परमेश्वर विश्वास के द्वारा हम आपके पास आते And we हैं say to you, we want to listen. और हम कहते हैं हम आपसे सुनना चाहते हैं, Talk to us. हमसे आप बातें The कीजिए। living God of heaven, और एक जीवित परमेश्वर जो स्वर्ग का है our Father, और जो हमारा पिता है, our Savior, हमारा उद्धार करता है, speak to our hearts this हमारे morning. हृदय से बात कीजिए We आज की plead सुबह। with you. और हम आपसे We really mean business. As a church, we are serious about this. और एक कलीसिया होने के नाते हम If इसके you लिए would not serious हैं। speak to us, then everything else we do will be meaningless. और यदि परमेश्वर आप हमसे बातें ना करोगे तो सारी बातें व्यर्थ होंगी। If this Christmas, if you don't speak into our hearts, then this Christmas will be a waste for us. और यदि इस क्रिसमस में आप परमेश्वर आप हमसे बात नहीं करते तो फिर हमारे लिए ये क्रिसमस किसी भी मतलब की नहीं। But we trust your goodness. लेकिन परमेश्वर हम आपकी भलाई पर You are भरोसा a करते good हैं। God, आप एक भले परमेश्वर and there हैं is no one like you. और आपके जैसा कोई भी नहीं है। Jesus said, only God is good. और सिर्फ यीशु ने कहा कि परमेश्वर ही सिर्फ भला है There is no one else who is good. और कोई भी नहीं यहाँ पर जो भला है। So this morning we claim your goodness परमेश्वर आज की सुबह हम आपकी भलाई के बारे में for कहते हैं ourselves and for this congregation. और हम स्वयं के लिए और ये इस सभा के लिए भी In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। You may be seated. आप अपने स्थान में बैठ सकते हैं। You have heard a lot, आपने right? बहुत सुन लिया So I will try to be very brief. और मैं बहुत ही थोड़ा ही बोलूँगा। Promises which may come true, may not come true. और जो वादे हैं हो सकता है वो पूरे हों या नहीं भी पूरे हों। I have done my part now. मैंने अपना काम पूरा किया Good intention, और अच्छे इरादे, right? Now, but to make you a little light, लेकिन आपको हल्का करने के लिए a little joke. एक चुटकुला Okay? Let me see if I can get it correct. और देखना चाहता हूँ कि If I don't get it correct, you still laugh.
अगर मैं सही भी नहीं हूँ तो भी आप हंसना Right? इसलिए In the honor of the pastor. पास्टर का आदर करने के नाते। Okay. A believer had a horse. और एक विश्वासी का एक घोड़ा था। Yes. And then a man came and he was buying this horse. और एक इंसान आया जब वह एक घोड़ा खरीद रहा So था। when he went to test the horse, और जब वह घोड़े को परखने लगा, this horse would not start running. और ये जो घोड़ा था भागने के लिए तैयार नहीं था। So the believer told this buyer, और ये एक विश्वासी ने इस खरीदने वाले से कहा, buyer is also a believer. और क्योंकि खरीदने वाला भी विश्वासी था, There are signals with this horse. और उसने कहा कि इस घोड़े को सिग्नल देना If you होता है। want the horse to run, you say praise the Lord. और यदि आप चाहते हैं कि घोड़ा दौड़े तो आपको कहना होगा परमेश्वर की आराधना हो। And when you want him to stop, you say amen. और जब आपको उस घोड़े को रोकना है तो आपको आमीन कहना होगा। So this guy said, okay, praise the Lord. और फिर इसीलिए ये व्यक्ति कहता है And this horse स्तुति हो। started running. और फिर ये घोड़ा दौड़ने And लगा। then he says amen. और फिर उस व्यक्ति ने उस घोड़े से आमीन कहा। And the horse stops. और फिर घोड़ा रुक गया। Hosted ji, be careful. Because you say praise the Lord a lot. इसलिए जी प्रेज़ द लॉर्ड बहुत बोलते हैं। One day, this guy was riding the horse. और एक दिन ऐसा हुआ कि ये व्यक्ति घुड़सवार He came to the सवारी mount. कर रहा था। Praise the Lord. और फिर उसने कहा कि And the horse is running. और उसने जब And he said, "Praise the Lord." घोड़ा And horse runs faster. और फिर घोड़ा और तेज When दौड़ने he came लगा। to a cliff, और फिर वह एक पर्वत के किनारे आया and he's suddenly scared. और फिर वह डर गया And then he remembers. और फिर वह याद करता And है he says, amen. और फिर उसने याद करके And the कहा, horse stops. और फिर घोड़ा रुक गया। He says, praise the Lord. उसने कहा परमेश्वर की आराधना हो। And you know what happened. फिर आप जानते हैं क्या हुआ। This morning we are going to talk about praising God. और आज की सुबह हम ये सीखे हम बोलेंगे कि परमेश्वर की आराधना कैसे की जाती है। This morning we are going to talk about living a life on the edge. और आज की सुबह हम उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे जहाँ पर हम एक कोने में जीते हैं। Every time you think of Mary, the mother of Jesus, और हर बार जब आप मरियम जो यीशु मसीह की माँ थी उसके बारे में आप सुनते हैं। when you think of the Christmas 2000 years back, और जब आप क्रिसमस के बारे में सोचते हो जो 2000 साल पहले हुई थी, I believe it could have been very different from the way we see Christmas today. और वह बहुत ही अलग तरीके की हुई होगी जिस तरह से आज हम देखते हैं। When Mary goes to Elizabeth in this story, और जब मरियम एलिजाबेथ के पास जाती है इस कहानी में, Elizabeth is already 6 months pregnant. और जो एलिजाबेथ है वो पहले से ही वो 6 महीने की गर्भवती है। For Elizabeth, that pregnancy was a blessing. और एलिजाबेथ के लिए ये जो गर्भवती होना बहुत ही आशीष भरी बात थी। But not so much earlier, an angel appeared to Mary. लेकिन उसके पहले जो स्वर्गदूत जो मरियम के पास आया था, And to Mary, this revelation was given, behold, a virgin shall conceive. और ये स्वर्गदूत आके उसको उसने ये प्रकाशन दिया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। And imagine in the Israel in those days, it would be amazing for any woman to be the mother of the Savior. और हो सकता है उस समय पे ऐसा होगी कि हुआ हो कि इज़राइल में जो कुंवारी औरतें होंगी उनके लिए ये एक बहुत अद्भुत बात होगी। The young women praying that Lord, let the Messiah come through me. हो सकता है वो जो कुंवारी हो वो कह रही हो कि जो मसीहा है वो हमारे द्वारा आए, Without even realizing what would it cost. और बिना ये सोचे कि इसका क्या दाम चुकाना हो सकता है। Maybe some of the interpretation believed that this virgin meant a young woman instead of being a real virgin. और बहुत बार जो लोग कहते हैं कि वो एक कुंवारी नहीं होगी लेकिन कोई शायद नौजवान एक स्त्री होगी। That debate still goes on. अभी तक इसके ऊपर बहस चल रही If है। it is a married young woman who has never given birth to a child, that the story would have been easier. और यदि ये कहानी इस तरह से हो कि एक नौजवान स्त्री जिसका विवाह अभी हुआ है और उसने बच्चा नहीं जना है, But that's not the way it is in this story. लेकिन इस कहानी में इस तरह से नहीं हुआ। It's really a virgin, लेकिन यहाँ पर सच में कुंवारी है। possibly a 16-year-old girl. हो सकता है कि ये 16 वर्ष की लड़की And हो। this one announcement is going to change everything in life. और ये जो एक घोषणा है कि ये जीवन में
सब कुछ बदल देगी। It's not so much of like this worship which people offer to Mary. और ये इस तरह की आराधना नहीं है जो लोग मरियम को अर्पित करते She हैं। never claimed it in the Bible to be worshipped. और उसने कभी भी ये नहीं कहा है कि उसकी आराधना की जाए। She was worshipping Jesus while Jesus was in her womb. और ये उस वक्त यीशु की आराधना कर रही है जब I यीशु praise उसके him. गर्भ में है। वो कहती है कि This मैं is उसकी how she आराधना says करती in हूँ। this poem. I praise him. और वो इस तरह से कहती है कि मैं उसकी आराधना करती He हूँ is my savior. क्योंकि वो मेरा उद्धार करता है। You know, only sinners need the savior. और सिर्फ एक पापियों को उद्धार करता But I'm not है। getting into that part of theology this morning. लेकिन मैं अभी उस हिस्से में नहीं जा रहा हूँ जो सिद्धांत में It's है। your conviction. ये आपके You read your Bible. कन्विक्शन है। ये आप अपनी बाइबल खुद But you पढ़िए। know this young woman, लेकिन आप ये जानिए ये जो एक नौजवान स्त्री she है is faced with a big dilemma. और ये बहुत ही अचंभे वाली चीजों को सामना करती She is है। engaged to this young man Joseph, और ये जो है एक नौजवान जो व्यक्ति है उससे उसकी मंगनी and हुई। now the angel announced her, और अब स्वर्गदूत आके उससे ये घोषणा करता है the one who is going to be in your womb will be from the Holy Spirit. और जो अभी तुम्हारी गर्भ में होने वाला है वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। What does it mean? और इसका मतलब क्या होगा? I've never heard of anything like that. और पहले इससे मैंने कभी नहीं ये बात सुनी थी। And maybe 2 days later in the morning she vomited for the first time. और हो सकता है दूसरे दिन सुबह उसने पहली बार Right. अपने जीवन में उल्टी की हो। And the mothers and fathers here know that feeling when it happens for the first time. और ये बहुत अलग होती है जो ये महसूस You करना say, do होता we है। go to gynecologist or do we wait for a few days? और कहते हैं कि हम गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं या थोड़े दिन इसका इंतजार But करें। who did she go and tell? लेकिन ये किसके पास गई होगी? She did not have anybody. उसके पास कोई भी नहीं था। What will Joseph think? और यूसुफ क्या सोचेगा? Has God spoken to him? क्या परमेश्वर ने यूसुफ से And बात she की doesn't है? know anything. लेकिन वे कुछ भी नहीं जानती। And then she remembers. और फिर लेकिन वे याद करती है Oh, the angel also said, कि स्वर्गदूत ने ये भी कहा है my cousin Elizabeth, कि मेरी जो बहन एलिजाबेथ है she is also carrying कि वह भी गर्भवती है 6 months. और 6 महीने की Oh, है। let me go to her. मैं उसके पास जाऊंगी। She maybe secretly plans this trip और हो सकता है वह छुप कर ये यात्रा करती है into the hill country. और एक पहाड़ों के And देश she में goes there. और वह वहाँ जाती है And she's like, it's difficult to with her. और उसके लिए बहुत मुश्किल था She understands the risk. लेकिन वह खतरे को जानती She है tells to the angel, how can it be? और वह स्वर्गदूत से कहती है कैसे हो सकता By the है। way, if you are not familiar with the Bible, और यदि आप बाइबल की जो most of these चीज़ें things which जानते I am saying right now, और ये जो सारी चीजें मैं आपसे they are कह here रहा in हूँ Luke chapter 1. और ये सारी बातें लूका एक I'm में not लिखी हुई making है। up the story. मैं आपको ये कहानी नहीं बता रहा I'll हूँ make a few guesses in the middle और हो सकता है मैं कुछ गैसेस करूँ बीच में just to give you the understanding of how this song can apply to our lives. और सिर्फ ये समझ देने के लिए कि कैसे ये गीत हमारे जीवन में अपनाया जा So सकता she है says to the angel, और वह स्वर्गदूत से how कहती can है this be? ये कैसे हो सकता है The angel says, this is exactly how it is going to be. और वो कहता है इसी तरह से होने वाला है Many years back, God sent a prophet Isaiah. और कहता है कि बहुत साल पहले एक And he wrote in the आया था Bible. जिसके द्वारा परमेश्वर ने बात की थी और उसने बाइबल में लिखा था That you may know who the Messiah is going to be. कि तुम ये जानोगे कि मसीहा कौन होगा And you are Mary, you are that woman which Isaiah predicted. और मरियम तुम वही एक वो कुंवारी है जिसके बारे में आयशा ने कहा And था this is what happened to Mary. This is what she said. और इस तरह से उसने कहा This is what a lot of times you and I say as a believer. और ऐसे ही बातें हम भी कहते हैं आप और मैं विश्वासी होने के I don't नाते understand it all. कि मैं पूरी तरीके से इस चीज को नहीं I don't जानता understand what God is doing in my life. और मैं ये नहीं जानता कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर रहा The है way I understand little bit, I know it's going to be heavy. और जो थोड़ी बहुत चीजें जो मैं जानता हूँ वो मेरे लिए बहुत भारी होगी But then she says, लेकिन मैं फिर कहती है let it be unto me according to your word. कि वो कहती है कि मेरे साथ वो सब हो जैसे तूने ये शब्द करे हैं Pain, तकलीफ yes. Troubles, समस्याएं yes. Bondage, बंधुआई yes. Discouragement, और हाँ निराशा yes. I don't want it. मैं नहीं चाहता लेकिन But has God said it? लेकिन क्या परमेश्वर ने ये कहा है If He has, अगर यदि उसने ये कहा है then let it be according to His word. तो फिर होने देना चाहिए कि जैसे उसके शब्द Then हैं think of this. She goes to Elizabeth.
और सोचिए इस बारे में कि वे And here is एलिजाबेथ Elizabeth in this Luke chapter 1. और इस कहानी में यहाँ पर एलिजाबेथ है Maybe she needs encouragement. और शायद हो सकता है उसे एनकरेजमेंट की You and जरूरत है I need this. और हम सबको ये चीज चाहिए Like Mary needs Elizabeth in this season of her life. और मरियम को जरूरत है एलिजाबेथ को की अपने जीवन में इस समय में That won't be the, like, I don't know how I relate to it today. मैं नहीं जानता कि इस चीज को मैं कैसे बताऊं But I know there is a personal application. लेकिन यहाँ पर एक व्यक्तिगत If you are in a place of Mary, I don't know who is your Elizabeth. और यदि आप मरियम की स्थान पर है तो मैं नहीं जानता कि तुम्हारे लिए एलिजाबेथ कौन But है I know there is somebody. लेकिन मैं जानता हूँ कि कोई है I know there is somebody. मैं जानता हूँ कोई है I know God will show you. मैं जानता हूँ परमेश्वर आपको And दिखाएगा you need a fellowship. मैं जानता हूँ आपको संगति की जरूरत You need है a fellowship ordained by God. आपको संगति की जरूरत है जो परमेश्वर ने You will be edified there. वो आपको दिखाई देगी She goes there. वह उधर जाती And है the child in Elizabeth's womb leaps. और एलिजाबेथ की जो गर्भ में जो बच्चा है उछल पड़ता The है forerunner is the first one to declare the Savior once again. और जो यीशु मसीह के पहले आने वाला जो व्यक्ति था वो उसी ने ही पहले उद्धारकर्ता की घोषणा We की see John the Baptist crying out in the wilderness. और हमने देखा है कि जो यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है वो उसने रेगिस्तान में Later in the story, और आगे जाके उस 30 years later, और 30 साल के John बाद the Baptist says, और यूहन्ना बपतिस्मा I am कहता the है voice crying in the wilderness. और वो कहता है कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो मैं उस बुलाहट को बताता हूँ But no. 30 years back he cried right from the mother's womb. लेकिन 30 साल पहले भी उसने अपनी माँ के गर्भ से पुकारा था At least 2 persons heard that voice. और कम से कम 2 व्यक्तियों ने उस घोषणा को सुना He was a prophet right from the mother's womb. और वह वो नबी था पर वो जब अपनी माँ के गर्भ में तब से Elizabeth knew. और एलिजाबेथ जानती The थी baby lived. और उसे पता था Mary, not because of you, कि मरियम तेरे वजह से but नहीं because of the one who is already in your womb. लेकिन मरियम वो उसके वजह से जो तेरी गर्भ में है Maybe doctors may still not surely declare because pregnancy is too early. और हो सकता है कि डॉक्टर इसके बारे में नहीं बताए लेकिन ये प्रेगनेंसी बहुत But the forerunner knew. लेकिन वो जो घोषणा करने वाला उसे पता है And then फिर they enjoy the fellowship together. और उस संगति को उसने उस संगति का उन दोनों ने आनंद लिया I lost my little bit of okay, yeah. And Mary started singing. और मरियम गाने लगी Life on the edge. और जो जीवन एक किनारे पर होता है Have you ever been there? क्या उस स्थान पर कभी गए हैं Have you ever been at a place where you don't know whether to go back or whether to go front? क्या कभी आप अपने जीवन में ऐसी स्थिति में आए हैं कि आपको लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए या मुझे पीछे लौटना I चाहिए think of Egyptians running from the Pharaoh and coming up to the Dead Sea. और मैंने देखा है कि मिस्री जब इजरायली फरो से भागकर वो लाल नदी के पास आते हैं It seems like you can't go anywhere. और ऐसा लगता है कि जैसे अब हम कहीं नहीं जा सकते You don't want to go back आप पीछे नहीं लौटना चाहते and you don't have a front place to go to. लेकिन आपके पास आगे जाने के लिए भी स्थान नहीं What do I do? मैं क्या करता हूँ I caught. Right? Like, think of Mary. और मरियम के बारे में सोचिए Where should I go? मैं कहाँ जाऊँ She couldn't go to Joseph. मैं यूसुफ के पास नहीं जा पाई She couldn't go to her parents. मैं अपने माता पिता के पास भी नहीं जा पाई Right now at Elizabeth's place. लेकिन इस वक्त वो एलिजाबेथ के घर पे And है then its story says, और फिर कहानी इस तरह से if you कहती है read the end of that, the last verse which we verse 56. और अगर आप 56 वचन पढ़ेंगे After being with Elizabeth for 3 months, और जब मरियम लगभग 3 महीने उसके you साथ know where she goes? आपको पता है वो कहाँ It जाती है says she goes to her own house. कि वह अपने घर लौट जाती है Why? क्यों Why wouldn't she go to Joseph's house? क्यों है वो यूसुफ के घर Think of that story. इस कहानी के You बारे में remember Matthew सोचिए chapter 1? अब आपको पता है वो याद है मत्ती 1
Joseph is still thinking of divorcing her और कि जिसमें यूसुफ अभी भी वो मरियम को तलाक देने के बारे में because Joseph सोचता है, doesn't understand. क्योंकि यूसुफ ये इस बात को नहीं समझ पाता And है। in the dream, the angel comes और स्वप्न में एक स्वर्गदूत आता and है explains to Mary, और वो समझाता है no, that's the Son of God. कि वह एक परमेश्वर का पुत्र है That's the prophecy. और वह एक भविष्यवाणी है Mary is pure. कि जो मरियम है वो पवित्र He is है the child from the Holy Spirit. और वो जो पुत्र है वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा है। Then Joseph makes a decision. और फिर यूसुफ निर्णय लेता But है। what do you do with a 3 months baby and go back to your home in Nazareth? और फिर आप क्या करते हैं उस बच्चे के साथ जब आप If you went to Joseph's home, still acceptable. कि आप अगर यूसुफ के घर जाएंगे तो फिर भी आपको अपनाया Think जा of सकता Mary है। walking back to Nazareth. और सोचिए उस चीज के बारे में कि जब मरियम है फिर से While she is a little far away. लौटती है, अभी वो आधे ही रास्ते में थी And तब, she is divided. और फिर वह बटी हुई Which थी home do I go to? कि किस घर में जाऊं, Should I go to walk towards Joseph's home क्या मैं यूसुफ के घर की तरफ जाऊं, and plead with Joseph? क्या मैं यूसुफ से Maybe विनती for करूं? 3 months there had not been any phone calls. There were no phones those days. और हो सकता है 3 महीने तक कोई फोन कॉल्स नहीं हुए, उस वक्त कोई फोन नहीं Maybe था। Joseph will ask this question. हो सकता है यूसुफ मुझसे ये सवाल Mary, पूछे where were you? कि मरियम तू कहाँ थी, Can I question you? क्या मैं तुमसे सवाल पूछ सकता हूँ, What was going on? क्या चल रहा था, What if I go to my home? क्या होगा यदि मैं अपने What घर will जाऊं? neighbors say? मेरे पड़ोसी क्या What कहेंगे, will they ask? कि वो मुझसे क्या पूछेंगे Mary, why do you look plump? कि मरियम तू क्यों इतनी फूगी हुई दिख रही What's है, going on? क्या चल रहा है, How will I answer? मैं कैसे जवाब And दूँ। imagine she is walking. और सोचिए She is on the वो चल edge. रही है, वो सिर्फ किनारे की तरफ It's पहुंची है really like both are the difficult choices. और हो सकता है दोनों जो है बहुत ही मुश्किल चुनाव है Whether to die or whether to live. कि मैं मरूं या जीऊं, Dark. Answerless. और बिना उत्तर के। She sings this song. और फिर वे ये गीत गाती है, My soul मेरे प्राण magnifies you. प्रभु की बड़ाई करता है, My soul magnifies you. मेरे प्राण परमेश्वर की बड़ाई करता है, My soul magnifies the Lord. मेरा प्राण परमेश्वर की बड़ाई करता है My spirit rejoices in God, my Savior. और मेरी आत्मा परमेश्वर में आनंदित होती है। Praise. और जो होता है आराधना करना, What's praise? क्या है आराधना करना। This week I was thinking about these 3 words together. और मैं ये 3 शब्दों को एक साथ सोच रहा था, Goodness of God, परमेश्वर की भलाई, grace, अनुग्रह gratitude. और धन्यवाद करना, These 3 go together. और ये तीनों एक साथ जाते हैं They cannot be separate from each other. और ये तीनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। Goodness of God. परमेश्वर की भलाई, I promised you last week, like this Christmas we will think about this theme. और मैंने आपको वादा किया था कि इस क्रिसमस के दिन हम ये सारी चीज़ों से के बारे में बात I was करेंगे। reading a theologian. Let me get into a little bit of a teaching part of the message. और हम एक शिक्षा के बारे में बात करेंगे। I was reading a theologian this morning, और मैं एक थियोलॉजी के बारे में पढ़ रहा था, and he's writing about the goodness of God, और जब मैं पढ़ रहा था वो परमेश्वर की भलाई के बारे में, and he brings an amazing perspective. और ये एक अद्भुत चीज़ लाता है। Remember Jesus said in Mark 10:18, और याद है यीशु मसीह ने मरकुस "Why do you call me good? कि उसने ये सवाल किया था कि तुम मुझे भला क्यों कहते No हो? one is good except God alone." और कोई भी भला नहीं, सिर्फ परमेश्वर भला है। But humanly speaking, you will say, "No, no, no, that's not right." और एक इंसान होने के नाते आप कहेंगे नहीं ये सही नहीं। We know a lot of good people, मैं बहुत सारे भले लोगों को जानते हैं, right? But Jesus said, "No one is good but God alone." और यीशु लेकिन कहता है कि कोई भी भला नहीं, So सिर्फ then परमेश्वर that भला brings है। a new definition to goodness. तो फिर भलाई के लिए एक नई परिभाषा है। That means what I define as good may not be so good. और मतलब जब मैं भलाई की जब परिभाषा देता हूँ तो फिर वह भलाई अलग है। So this is this theologian's definition of goodness. और ये जो थियोलॉजियन की ये परिभाषा है जो भलाई के ऊपर है। Goodness of God includes everything, all the qualities और जो परमेश्वर की भलाई है वो सारी चीजों को गिनती है, वो that can be required
for an ideal person. और जो वो एक ऐसी भलाई है जो एक संपूर्ण व्यक्ति के अंदर होती I think है, that's a good definition. और ये एक अच्छी परिभाषा है। Everything which is required for somebody to be ideal, if you have that, that's goodness. और यदि हर चीज उस व्यक्ति में हो तो फिर एक सही परिभाषा है। So that means none of us, और इसका मतलब है फिर कोई भी नहीं हम none of us से qualify. कोई भी इसके योग्य नहीं। Mother Teresa doesn't qualify. और मदर टेरेसा भी योग्य Nelson नहीं थी। Mandela doesn't qualify. और नेल्सन मंडेला भी, Mahatma Gandhi doesn't qualify. और महात्मा गांधी भी क्वालिफाइड। Nobody is ideal. कोई भी एक संपूर्ण, They never claim to be ideal. और उन्होंने कभी कहा भी नहीं। Jesus is asking that question to that man. और यीशु मसीह ने वे सवाल उस व्यक्ति से Now what do पूछा, you say? अब तुम क्या कहोगे? Now what do you say? Am I good or not? और अब क्या कहोगे कि मैं भला हूँ या He नहीं? did not say that. उसने ऐसा नहीं कहा। Because if you say I am good, then I am challenging you to call me God. और यदि आप अगर मुझे भला कहोगे तो फिर मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप What अपने is परमेश्वर there कहो। about God which is good? क्या चीज है परमेश्वर के बारे में जो भली है? This says, he said, it includes all the qualities like holiness, और ये कहता है कि सारे गुणों को वो लेता है और पवित्रता को भी, righteousness, truth, और धार्मिकता और सच्चाई, love and benevolence and mercy and grace. और परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह और दया। You put everything in this person, और ये सारे गुण आप एक व्यक्ति में डाल then देते it's हो a good person. तो फिर वह एक भला व्यक्ति So है। goodness of God means और फिर परमेश्वर की भलाई का मतलब होता He है is a just God. कि वह भला He is परमेश्वर a है, holy God. और वह पवित्र He is परमेश्वर a है, merciful वह God. दया वाला He is a परमेश्वर है, gracious और God. वह अनुग्रही He is परमेश्वर है। all of these things put together and the things which I have not yet listed. और ये सारी चीजें उसके अंदर डाल दे, और वो सारी चीजें जो मैंने नहीं बोली वो भी, That's God. वह परमेश्वर है, That's God. और वही परमेश्वर है, He's a good God. और वह भला परमेश्वर है, He gives us things, right? और हमें चीजें देता A है। lot of times we think goodness of God is limited to the things which I receive from Him. और बहुत बार ऐसे लगता है कि परमेश्वर की जो भलाई है वो बहुत ही सीमित है, जब ये No. गुनाह चीजों से करता हूँ जो The चीजें मुझे things, मिलती हैं, the things which I have received because of the goodness of God are inherent in that attribute of God which He is. और जो सारी चीजें मैंने परमेश्वर से स्वीकारी हैं वो सारी परमेश्वर के गुण से जुड़ी हुई हैं। And I can't understand the goodness of God only on the basis of what He gives me. I have to understand the goodness of God on the basis of who He is. और मैं परमेश्वर की भलाई को सिर्फ इसमें नहीं समझ पाता हूँ कि जो कुछ मुझे देता है उसी में है, लेकिन परमेश्वर की भलाई इस तरह से मैं जानता हूँ कि वो, जब मैं ये जान जाऊँ कि वो कौन है। So this is what happens on the edge. और इसी तरह से होता है जब किनारे में आते हैं, You are on पर the आते हैं। cliff of your life, अब अपने जीवन के एक ऐसे छोर पर हैं, and if you did not say amen, the horse will jump. और यदि आप अपने जीवन में आमीन नहीं करेंगे तो फिर घोड़ा And if you पड़ेगा। said amen and then said praise the Lord, still the horse will jump. और यदि आप आमीन कहते हैं फिर भी और उसके बाद कहते हैं कि परमेश्वर की स्तुति है तो भी घोड़ा And पड़ेगा, your feet could slip and you are walking. और आपकी जो पैर है वो फिसल जाएंगे, And life is getting dangerous. और जो जीवन है बहुत खतरनाक हो रहा है। And you have been like in your pits. और ऐसा है कि हम अपने जीवन के एक And the खड्डे pit में has हैं, been dark. और वो जो खड्डा है बहुत ही And there has been a danger that somebody would fill the pit with mud. और इतना किसी को इतना भी डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये धूल से भर जाएगा ये खड्डा। You may come to that point in your life. और आप अपने जीवन में एक ऐसे हिस्से पर आते हैं, But you know what? लेकिन आप जानते हैं क्या, Something happens. लेकिन कुछ अलग होता है। I'm having a picture in my mind which I'm not wanting to reveal. और मेरे मन में एक चित्र है, लेकिन मैं आपको वो दिखाना नहीं But I चाहता, communicate with words that picture. लेकिन मैं उस चित्र को मैं शब्दों में बताना चाहता हूँ You're आपको। standing on the edge of the mountain, और आप एक पहाड़ के किनारे पे खड़े हैं, and your back is on the valley side, और जो आपकी जो पीठ है वो खाई की and you don't तरफ है, know how behind you can go and then you fall. और आपको ये नहीं पता है कि आप कितना पीछे जाएंगे और फिर आप गिर पड़ेंगे, But then लेकिन फिर you feel love, लेकिन आपको महसूस होता है कि आपको प्रेम किया गया है, and you feel an embrace. और फिर आपको महसूस होता है कि You आप find a पाए हैं, person who loves you, और फिर आप ऐसे व्यक्ति को पाते and हैं you जो are आपसे बहुत प्रेम करता है, standing on that edge. और आप एक ऐसे किनारे पर खड़े हैं, You enjoy love. और फिर आप प्रेम का आनंद लेते हैं। How does that work?
कैसे वो होता है What is the relationship of goodness with praise? और क्या क्या संबंध है स्तुति का और प्रेम का Goodness of God and praise. और परमेश्वर की भलाई और स्तुति Praise is a response of humanity to the goodness of God. और जो स्तुति होती है वो इंसान की परमेश्वर की भलाई के बदले में होती है On the cliff, I can praise God. और मैं जो पहाड़ के किनारे पे हूँ वहाँ पर परमेश्वर की आराधना My कर सकती life हूँ। hasn't changed, but I start praising God. और अभी तक मेरा जीवन बदला नहीं है लेकिन मैं परमेश्वर की स्तुति कर रहा हूँ And for a long time, I have considered this idea, और बहुत बार मैंने ये विचार के बारे में सोचा है and I almost thought as if it is a theory. और बहुत बार ऐसे सोचा कि ये सिर्फ सिर्फ theory है I wondered how could somebody else do it? और मैं सोचता हूँ कैसे कोई ऐसे कर सकता है How could Mary sing the song? कि कैसे मरियम ये गीत गा सकती है But Holy Spirit can fill you लेकिन पवित्र आत्मा आपको भर सकता है in your cliff, आपके किनारे पर right in the middle of your darkness. आपके जो अंधकार के बीच में Right वहाँ। at that moment when you could maybe breathe one breath और and हो fall सकता off. है एक पल में आप सांस ले और आप गिर जाएं But Holy Spirit can fill you. लेकिन पवित्र आत्मा आपको भर सकता है Holy Spirit can open your eyes to the goodness of God. और हो सकता है पवित्र आत्मा आपकी आंखें खोल देगा Holy Spirit can show you an embrace which you never felt. और हो सकता है पवित्र आत्मा आपको वो अपनाया जाना दिखा सकता है जो कभी आपने महसूस नहीं किया है And you know what? और आपको वो पता है In your cliff you will be okay. और आप अपनी जो कोई किनारे पर होके वहाँ पर You आप अच्छा महसूस can करेंगे। possibly live all your life on that edge. और हो सकता है आप अपनी पूरा जीवन उस किनारे पर रहकर जी सकते If you हैं live with that embrace, और जब आप उसे अपनाए जाने पर आप if you live with the love of God embracing you. और यदि आप महसूस करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम आपको अपनाता But है you know what? The feeling goes very soon. लेकिन जो महसूस करना है वो बहुत जल्दी चला जाता है Like we are emotional beings, right? हम बहुत ही भावुक व्यक्ति हैं We feel great many times, और बहुत बार हमें अच्छा महसूस होता है and then here we go. और फिर ऐसा होता The है feelings drop. और वो जो हमारी भावनाएं वो गिर पड़ती हैं That's the challenge. और यही एक चुनौती है How does that work? कैसे ये काम करती है There are three parts of our humanity. और तीन हिस्से होते हैं एक Spirit, इंसान के soul, आत्मा प्राण body. और देह Right? 1 Thessalonians 5:24. और पहला थेसलोनियन 5:24 In this song, Mary talks about two of her parts. और यहाँ इस गीत में मरियम दो चीजों के My बारे में soul बोलती है। magnifies the Lord. और जो मेरा प्राण है प्रभु की बड़ाई My करता है spirit rejoices in my Savior. और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर में आनंदित होती है Praise can begin in my spirit. और जो स्तुति है मेरे हृदय में शुरू हो सकती है Praise can go from my spirit to my soul. और जो स्तुति है मेरे आत्मा से मेरे प्राण में जाती है It can cover my emotions. और मेरी भावनाओं को ढक सकती है Then it comes to my lips, और फिर वह मेरे होठों पर आती है and I start singing a song. और फिर मैं गीत गाने लग जाता हूँ But maybe और हो सकता है it goes from my lips to all over my being. और हो सकता है फिर मेरे होठों से वे पूरे मेरे मुझ पर आ जाते In हैं this year's convention और इस साल के जो कन्वेंशन में in Baltimore, in Greater Grace, और बॉल्टिमोर जो ग्रेटर ग्रेस में हुआ था we ended the convention with dancing while worship. और जब हमने उस कन्वेंशन का अंत किया वो हमने गाकर और नाच कर किया था For the first time, I appreciated the value of dancing in worship. और पहली बार मैं उस आराधना में नाचे जाने को अपनाता हूँ But that was nothing compared to what I personally enjoyed with God sometime this week. और उस चीज़ की जब मैं तुलना इस हफ्ते जो मैंने किया उसके साथ करता हूँ तो फिर मैं कुछ भी नहीं I wrote a comment on one of the social websites. और एक सोशल वेबसाइट पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी A lot of people responded, और बहुत सारे लोगों ने इसको प्रत्युत्तर किया and I've been enjoying those responses. और जो उनके प्रत्युत्तर आए थे उसमें And it was basically उसका आनंद ले रहा था about driving. और ये सिर्फ ये चलाने के बारे में था
I was driving one day to work, और मैं अपनी गाड़ी चला के अपने काम की तरफ बढ़ रहा and I था experienced an amazing feeling of the Holy Spirit that morning. और उस दिन मैंने अद्भुत पवित्र आत्मा से भरे जाने को महसूस किया And I was a little bit in a pain. और कहीं ना कहीं मैं दर्द में भी था I was, yeah, Spirit filled me. लेकिन आत्मा ने मुझे भर दिया I was listening to some songs, और मैं कुछ गीतों को सुन रहा था and I started singing, और मैं उन्हें गाने लगा and I meant those songs. और मैं उन गीतों का वो सच में And I was ऐसे singing गाना unto the Lord. और मैं प्रभु के लिए गा You रहा remember those verses in the Psalms which says, "Sing unto the Lord a new song." और आपको याद होगा जो ये बात जो कहता है कि परमेश्वर के लिए नए गीत Have you गाओ। ever felt guilty about that verse? कभी आपको उस शब्द के और वचन के If you are not a musician or a poet, और यदि आप म्यूजिशियन नहीं है और आप कवि नहीं है तो then you may feel guilty. फिर आपको ग्लानि How महसूस can I होगी। sing a new song to the Lord? कैसे हो सकता है कि मैं परमेश्वर के लिए नया गीत गाऊं? But I realized this week, लेकिन मैंने इस हफ्ते महसूस oh no, किया I don't have to be a musician. कि मुझे एक संगीतकार होने की जरूरत नहीं। That morning I sang unto the Lord a new song. और उस सुबह मैंने परमेश्वर के लिए एक नया गीत I would गाया have sung 100 times that song in my life. और मैं 100 बार वो गीत को मैंने अपने But जीवन that में morning it गाया was a new song unto the लेकिन Lord. उस सुबह परमेश्वर के लिए वो गीत नया था And I wrote in that social blog. और उस जो सोशल ब्लॉग में Either मैंने लिखा, eventually my hands were lifted up. और मेरे जो हाथ थे वो उठ And गए people wrote, safe driving, safe driving. और लोगों ने कहा कि एक अच्छी ड्राइविंग करो Don't worry, I'm safer this way. और लेकिन मैं सही हूँ इस वक्त I was not safe that way. लेकिन मैं उस वक्त सुरक्षित नहीं था Both of my hands were on steering, but I was not safe. मेरे दोनों हाथ जो थे स्टीयरिंग पे थे तो भी मैं सुरक्षित नहीं था And my hands are away from steering, but I'm safer. लेकिन मेरे जो हाथ स्टीयरिंग से उठे हुए हैं फिर भी मैं सुरक्षित हूँ Oh, I was sane enough to. I didn't hit anybody that और morning. मैंने किसी को ठोकर नहीं लगाई What I'm saying, मैं क्या कह रहा हूँ praise, स्तुति praise, स्तुति learning praise in our life और सीखना परमेश्वर की स्तुति करना because God is good. क्योंकि परमेश्वर भला When है I don't see it, जब मैं नहीं उसे खोजता I believe it. लेकिन मैं उसे विश्वास I don't करता have to see one evidence in my life. मुझे कोई सबूत एक भी सबूत Even मुझे though नहीं evidences दिखाई will देता। come. लेकिन तो भी सबूत आएंगे The sun shines on good as well as bad. कि जो सूरज है और भलाई और बुराई दोनों पर आता है God has given us clothing, परमेश्वर ने हमें कपड़े दिए हैं homes and families, परिवार और घर jobs, money. नौकरी पैसा There is lot of evidence already. और सब क्या बहुत सारे सबूत What हैं। if the evidence doesn't come? और क्या होगा यदि सबूत ना आए तो Still He is good. तभी भी मैं भला I परमेश्वर can worship Him. तभी मैं उसकी आराधना कर सकता हूँ I can become a praise person. मैं एक स्तुति करने वाला व्यक्ति बन सकता हूँ There are few lines I'll read from this guy. और कुछ वाक्य है जो मैं इस व्यक्ति की He talks about the love of God in context of goodness of God. और वो परमेश्वर की भलाई को और परमेश्वर के जो प्रेम है His उसकी संगत में definition of करता love है of God is amazing. और परमेश्वर की प्रेम की जो परिभाषा है Listen वो to बहुत ही this. अद्भुत है वो इस तरह से सुनिए He says God is eternally moved to communicate Himself. और अनंत में परमेश्वर आगे बढ़ा ताकि वो क्योंकि वह अनंत है Like God wants to communicate His nature and character to humankind. That's His love. और परमेश्वर इंसान को अपना प्रेम अपने गुण दिखाना चाहता है इंसान को वही उसके गुण हैं It's not a mere emotional impulse, और ये सिर्फ भावनाएं ही नहीं but a rational and voluntary affection. और ये एक सच्ची भावना है This is not to deny feeling, और ये भावनाओं को नकारता नहीं but true love necessarily involves feeling. लेकिन जो सच्चा प्रेम होता है उसमें भावना होती है God feels for you. और परमेश्वर महसूस करता है God feels for us. परमेश्वर को भावना है हमारे Zephaniah 3:17.
जफन्याह 3:17 कहता है, 15 to 17. 15 से 17। He is like our bridegroom rejoicing over us. और वह हमारा दूल्हा है जो हमारे लिए आनंदित होता है। God has a feeling. परमेश्वर के पास भावनाएं हैं। Feelings when they are right, they need to be communicated. और जब भावनाएं सही होती हैं तो फिर उसे व्यक्त करना चाहिए। Feelings need to be expressed. और जो भावनाएं हैं उसे व्यक्त करना चाहिए। A lot of times you have heard, if you're feeling something, you just press it. और बहुत बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि जब आपको भावनाएं महसूस हो रही तो उसे दबा It दो, will be okay. तो फिर सही होगा। If you know that your feelings are right, यदि आपको पता है कि आपकी भावनाएं सही हैं तो then they need to be expressed. उन्हें व्यक्त करना चाहिए। C.S. Lewis said this. और C.S. लुईस ने ये बात कही है। He said when two persons are in love, जब दो व्यक्ति प्रेम में पड़ते हैं they seem to praise each other a lot, right? और तो एक दूसरे की बहुत स्तुति करते हैं। He says that praise is not necessarily a result of the other person's goodness. और जो प्रशंसा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की करता है तो वो प्रशंसा इसीलिए नहीं आती क्योंकि वो भला है। That praise, I'm unable to quote him. You can search it, but I'm going to communicate the essence of that quote. और जो उसकी जो खूबसूरती है उस कोट का, उसको देखिए। He says praise fulfills the expression. और जो प्रशंसा होती है वो जो चीज व्यक्त की जाती है वो उसे महसूस कीजिए। Praise fulfills the expression of enjoying each other. और जो प्रशंसा होती है वो एक दूसरे में आनंद लेना है। That means if we enjoy each other, और यदि हम एक दूसरे से आनंदित we can होते हैं quietly enjoy each other. और हम एक शांतता से भी एक दूसरे का आनंद ले सकते हैं, We will only half do it. तो फिर हम सिर्फ आधा ही करेंगे। But if we enjoy each other and express that to each other, और यदि हम एक दूसरे से आनंदित होते हैं और उसे व्यक्त करते हैं it will be a fulfillment of it. तो फिर वह एक पूरा करने के बराबर है। That's why he says lovers do it all the time. और इसीलिए कहता है जो प्रेमी होते हैं वो हमेशा ऐसा करते हैं। That's how our relationship with God and us is. तो वैसा ही हमारा परमेश्वर के साथ संबंध भी You है। remember in Genesis 1 what did God do? और आपको याद है उत्पत्ति 1 में परमेश्वर ने क्या किया था? What did he do? उसने क्या किया था? He creates something और उसने कुछ बनाया and then he looks at it और फिर उसे देखता and he है says it is good. और फिर वह कहता है Why does he भला say it है। is good? क्यों उसने कहा ये अच्छा है? Because what he has created is pleasing him. क्योंकि जो कुछ उसने बनाया है वह उसे प्रसन्न करता है। So when he praises it, it fulfills his nature and character. और जब वह उसकी प्रशंसा करता है तो फिर उसका जो स्वभाव है, जो गुण है, उसको पूरा करता है। Then he looks at man. और फिर वह इंसान को देखता He है। says, let us make man in our own image. तो फिर वह कहता है इंसान को अपने स्वरूप में बनाएं। This is one thing he does. और इस तरह से वह करता है। He says it is very good. और वह कहता है बहुत अच्छा है। And now what does he wait for? और फिर वह किसका इंतजार करता Someday है? Adam will say, और फिर इस चीज का इंतजार करता God है is आदम very एक good. दिन कहेगा कि परमेश्वर बहुत God is very good. परमेश्वर भला है। Because Adam is made in the image of God. क्योंकि आदम परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया That's है। what praise is. तो यही प्रशंसा होती है। Praise will bring a complete expression to our relationship with God. और जो प्रशंसा है वो हमारे जो परमेश्वर के साथ संबंध है उसको संपूर्णता देता है। What happens? तो फिर क्या होता है? As I learn praise, और जैसे ही मैं प्रशंसा करना सीखता हूँ something happens. तो कुछ होता है, Something amazing happens in कुछ me. अद्भुत होता है, मेरे अंदर अद्भुत होता है। Now, for a moment, let's not just talk vertical. और एक पल के लिए हम एक परमेश्वर के साथ संबंध है उसके बारे में नहीं बोलेंगे। For a moment, let's talk a little horizontal. और अब हम व्यक्तियों के साथ जो संबंध रखते हैं उसके बारे में बोलेंगे। You know, in Old Testament, there used to be a ritual. और पुराने नियम में कुछ रीति रिवाज होते थे। Psalm 116, verses 13 to 14. और भजन संहिता 116
verses 13 and 14. वचन 13 और 14 And that was quoted in 1 Corinthians 10:16. और वो पहला कुरिन्थियों 10:6 में बताया गया The blessing है। with which we bless, isn't that the cup of the Lord? और जिस आशीष से हम किसी को आशीषित करते हैं, क्या फिर वह प्याला परमेश्वर की ओर से नहीं? In the Old Testament, the priest and the host of any party would take a cup of wine. और पुराने नियम में ऐसा होता था कि और जो लोग होते थे वह एक प्याले को लेते थे He would take this cup upwards and praise God first, और वो जो दाखरस का प्याला होता था वह परमेश्वर की ओर उठाते थे and then he will hand it over to guests. और फिर जो मेहमान आते थे उनको पेश करते थे। That is the kind of ritual which was eventually turned into Lord's feast. और यही जो रिवाज था जो प्रभु भोज में बदल But गया। that ritual represented something amazing. और जो ये रिवाज है कुछ अद्भुत चीज व्यक्त करता You know है। what it represented? पता है वो किस चीज को बताता है? This cup कि ये प्याला has been filled by God परमेश्वर के द्वारा भरा गया because of His goodness. क्योंकि उसकी भलाई के द्वारा। Now I can take this cup अब मैं ये प्याला ले सकता हूँ and then pass it over. और मैं ये दे सकता हूँ। The goodness of God has impacted my life. और परमेश्वर की भलाई ने इतना मुझ पर प्रभाव डाला, That's why I'm able to praise Him. इसीलिए मैं अब परमेश्वर की प्रशंसा And कर then I सकता not हूँ। just praise Him, सिर्फ मैं परमेश्वर की सिर्फ स्तुति ही नहीं करता, I can also offer praises to others. और मैं लोगों की भी स्तुति कर सकता हूँ, प्रशंसा कर सकता हूँ। How can it happen? कैसे हो सकता Because है? it's not natural. क्योंकि ये साधारण नहीं